Center brings together to one forum the top-ranked engineering university in Pakistan, NUST, the global networking market leader Cisco, and the largest telecom service provider in Pakistan, PDCL. The center promotes international collaborations and strengthens the industry-academia linkage on IPv6. The center is an academia partner of the IPv6 task force. The center is also collaborating with the Ministry of IT and Telecom for establishment of IPv6 test facility at SEEX. It is collaborating with HEC for establishment of IPv6 WAN-enabled connectivity among Pakistani universities. It is collaborating with Cybernet and Pakistan Software Export Board for IPv6 connectivity and services. The SEEX IPv6 implementation and research team includes Dr. Adil Beg, Dr. Adnan Khalid Kiani, Mr. Imran Chaudhary, and Mr. Ajmal Farooq. We welcome other universities and service providers to join hands and work aggressively for the growth of IPv6 in Pakistan. Now I would like to introduce to you the honorable guest today, Mr. Kashiful Haq. Mr. Kashiful Haq is a veteran in the ICT industry in Pakistan. With over 14 years of experience as a technologist and an entrepreneur, he has deep insight into technology and business impact of technology. Currently, he is working as founding CEO of Corvid Networks. Corvid is leading network integrator of the region, specializing in providing solutions, services, and training to its customers all across Pakistan and the Middle East. At Corvid, Mr. Kashif is responsible for looking after the entire business operations, including sales, finance, HR, and technical matters. Despite his involvement in business management, he is also actively and extensively involved in conducting trainings on cutting-edge networking technologies, including MPLS, IPv6, multicasting, and VPN. He has trained thousands of professionals in Pakistan, Middle East, UK, and USA. He is also a member of National Speakers Association USA and Global Speakers Federation, and actively promotes the art of public and professional speaking. Please welcome Mr. Kashif. Would you like this discussion to be in English, Urdu और पंजाबी की जुबान में पसंद करेंगे? मैंने लास्ट टाइम भी सबसे पहले यही सवाल किया था और ये आया था कि मिक्स बात करेंगे. So let's continue the tradition और जहाँ पे जिस चीज़ की जरूरत होगी उस जुबान में बात करने के लिए. Discuss MPLS, different applications of MPLS like VPNs. We talked briefly about traffic engineering और सबसे ये था कि जी कुछ ना कुछ IPv6 पे भी होना चाहिए, क्योंकि IPv6 पे जनरली ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर IT इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिकेशंस के अंदर बल्कि ग्लोबली IPv6 के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क हो रहा है. रिसर्च तो खैर अब उतनी ज़्यादा नहीं हो रही हो रही है रिसर्च की, लेकिन एक्चुअली डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. तो पाकिस्तान बीइंग अ मेंबर ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिटी, तो ज़रूरी था कि पाकिस्तान में भी IPv6 की डिप्लॉयमेंट की जाती. लेकिन जैसे फोर्सी किया गया था अर्ली 90s के अंदर जब IPv6 की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी कि प्रॉब्ली बाय द अर्ली और मिड 2000 से लेकर 2005 तक प्रॉब्ली IPv6 would take over. लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका. तो लेट्स टेक अ लुक ब्रीफली कि वजह क्या हुई कि IPv6 जो फोर्सी किया गया था एक्चुअली उस तरह से टेक ऑफ कर क्यों नहीं सका, और बिफोर दैट IPv6 को इंट्रोड्यूस करवाने की IPv6 की मोटिवेशन क्या थी, ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंडर हो जाए. मुझे पता है कि आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि IPv6 की बैकग्राउंड क्या है, क्यों IPv6 डेवलप होना शुरू हुआ और आज IPv6 कहाँ पे खड़ा है. लेकिन फिर भी बेस बिल्डअप करने के लिए तो थोड़ा सा हम IPv6 का प्राइमर या बैकग्राउंड ले लेते हैं और शुरू की थोड़ी सी डिस्कशन हमारी कुछ नॉन टेक्निकल होगी ताकि सब लोग वार्म अप हो जाएं. तो और ये बाय द वे इंटरैक्टिव सेशन होगा पिछले सेशन की तरह, जिसके अंदर जितना मैं बोलूंगा उसके करीब करीब भी आप लोग भी बोलेंगे. So everybody is welcome to raise questions. Any confusion that you have, please ask. And if it's relevant to whatever we are discussing right now, I'll answer it right away. अगर मुझे ना आता हुआ या relevant ना हुआ तो मैं कह दूंगा कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, या ना आता हुआ तो साफ कह दूंगा मुझे नहीं आता. IPv6 के बारे में आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा कि IPv4 की मौजूदगी में एक ऑल टुगेदर नए प्रोटोकॉल की जरूरत क्या थी. What was the motivation behind developing a new protocol named IPv6? जी, the single most important requirement. IP addresses की shortage, IPv4 addresses जो थे जिस स्पीड पे वो कंज्यूम हो रहे थे इन अर्ली 90s,
اس میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس اسپیڈ کے اوپر IPv4 ایڈریسز پرابلی بائی دا مڈ اور لیٹسٹ بائی دی اینڈ آف 90s سارے کے سارے برن آؤٹ ہو جائیں گے, کنزیوم آؤٹ ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے سوچا گیا کہ وی نیڈ اے نیو پروٹوکول جو کہ شارٹیج کو اوور کم کر سکے. بٹ انفارچونیٹلی کسی بھی نئے پروٹوکول کو, اور وہ بھی IPv4 جتنے کمپریہنسو پروٹوکول کو ریپلیس کرنے والا پروٹوکول جو تھا, اس کی ڈیولپمنٹ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی. اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر بہت سے سال لگنے تھے, اور یہ سوچا گیا کہ اتنے سال انتظار کیا گیا تو IPv4 ایڈریسز جو ہیں وہ کمپلیٹلی برن آؤٹ, کنزیوم آؤٹ ہو چکے ہوں گے تب تک. سو گاڈ فادرز آف انٹرنیٹ ڈیولپمنٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو فالو a two-pronged strategy. The second prong, which we already discussed, was to develop a new protocol. In that case, or in that time, it was called IP Next Generation. And the second part of, or the first part of the strategy was to delay the obvious, to delay the inevitable, which was the burning out of IPv4 addresses. So the two strategies they adopted to implement the first strategy, or the two techniques they adopted or they introduced to implement the first strategy were, number one, NAT, Network Address Translation, and number two, CIDR or classless inter-domain routing. As you all understand, we will not be discussing NAT in detail, but I hope you all understand that what NAT does is that you can use private addressing within your network and use the public addresses only when you need to go out to the internet. So NAT, one thing, and CIDR or classless inter-domain routing was the second option, or was the second technique, which was used to slow down the consumption of IPv4 addresses. By the way, do you all know what CIDR was? Yes. One of the reasons why IP addresses got consumed so quickly was because of its inefficient class-based mechanism, class A, B and C IP addresses. For example, if a company bought a class A address, what they were getting was 2 raised to 24 address space. And out of that, they only could use a few thousand addresses on, and all the other addresses would go waste. So class-based structure was inherently inefficient, suboptimal. So what they did was, even in IP addressing 4, they said let's use a classless structure. So that is why they introduced classless inter-domain routing, or CIDR or CIDR, whatever we call it. So these two strategies or these two techniques were adopted to delay the inevitable and buy time till they could develop a new IP protocol, or by the time they could develop IPv6. And the good thing that happened was, because of the adoption of these two techniques, the growth or the consumption of IPv4 was slowed to such an extent that the need for a replacement never arose in the true sense of the word. Actually ضرورت ہی نہیں پڑی, آج تک ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ آج بھی IPv4 ایڈریسز اویلیبل ہیں اور چل رہے ہیں, جو کہ 10 سال زیادہ ہو گئے ہیں ایز پر ایکسپیکٹیشنز. تو جب تک کوئی چیز سر پہ نہ پڑے, جب تک امتحان اگلے دن نہ آ جائے, تب تک تیاری نہیں ہوتی. کیونکہ IPv4 ایڈریسز ابھی بھی اویلیبل ہیں, اس لیے دنیا میں آج بھی ہمیں IPv6 ایڈریسنگ یا IPv6 ایز اے پروٹوکول کی امپلیمنٹیشن بہت وائڈ اسکیل پہ نظر نہیں آ رہی, اس اسکیل پہ جس کے اوپر ایکسپیکٹڈ تھا. Having said this, لیکن ایشو یہ ہے کہ the inevitable is going to happen sooner or later. اور اب تو فورسز کوشش کر رہی ہیں to actually make it happen. ضرورت نہیں بھی ہے اس کو کروایا جائے, اتنی محنت کی ہوئی ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے, بیکاز بائی دا ٹائم ضرورت پڑ جائے تو ہم لوگ ایٹ لیسٹ ریڈی ہوں. جو ٹیزنگ ایشوز ہیں کسی نئے پروٹوکول کی اڈاپشن کے, وہ گلوبل انٹرنیٹ کے اوپر یا اندر اتنی سیریسلی فیس نہ کرنے پڑے. تو لہٰذا IPv6 کو جو پش مل رہا ہے, پل تو تھا لیکن اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, لیکن اب جو پش مل رہا ہے IPv6 کو, اس پش کی وجہ سے وی آر ایکسپیکٹنگ ان دا نیکسٹ 1.5-2 years ہمیں بہت وائڈ اسکیل کے اوپر IPv6 ڈپلوائڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا انڈسٹری کے اندر. اور بائی دا وے 8 جون کو, آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پتا ہو, 8 جون کو گلوبل IPv6 ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, جہاں پہ بہت سی سیلیبریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پروموٹ کیا جائے گا IPv6 کو, اور بہت سی سائٹس, میجر سائٹس اپنی سروسز 24 گھنٹے کے لیے IPv6 کے اوپر بھی اویلیبل کریں گے. تو اگر کوئی سی بندے نے اپنا نیٹ ورک یا کسی آرگنائزیشن نے اپنا نیٹ ورک IPv6 پہ مائگریٹ کر لیا ہے یا ٹیسٹ انوائرمنٹ میں IPv6 چلا رہے ہیں, تو دے کین ایکچولی ٹیسٹ دیئر نیٹ ورک, کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر IPv6 سروسز یا IPv6 سائٹس اویلیبل, کانٹینٹ اویلیبل ہو جائے گا. جتنی بڑی بڑی آپ کی ویب سائٹس ہیں وہ ساری کی ساری IPv6 کے اوپر اپنی سروسز فور 24 hours آفر کریں گی آن 8 جون. 2 دفعہ پچھلے سال بھی ہوا تھا IPv6 ڈے, بٹ اس دفعہ گلوبلی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. پچھلے سال دونوں دفعہ لمیٹڈ اسکیل پہ سیلیبریٹ کیا گیا. تو آئی ہوپ کہ نسٹ کے اندر بھی 8
जून को कोई ना कोई इवेंट होगा ऑन IPv6। अब बिफोर IPv6 डे मैंने कहा था कि IPv6 को अब पुश भी मिल रहा है और IPv6 ने हैपन होना है, इट्स गोइंग टू हैपन नाउ। उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखा है कि पिछले 10 सालों में या जब IPv6 को फोर्सी किया गया था उस टाइम से लेके अब टाइम तक चीजें बहुत ज्यादा चेंज भी हुई हैं। पहले IP एड्रेसेस की जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस या होस्ट को सर्वर्स या कंप्यूटर्स लैपटॉप्स को होती थी, बट नाउ यू सी एवरी मोबाइल फोन इन द वर्ल्ड इज ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली रिक्वायर एन आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट। IP के ऊपर उसको अपनी आइडेंटिटी चाहिए और नंबर ऑफ फोन्स की जो तादाद है वो ऑलरेडी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या नंबर ऑफ होस्ट से एक्सीड कर चुकी है। और ना सिर्फ ये कि आपके मोबाइल फोन जो है उनको IP एड्रेसेस चाहिए होंगे, बल्कि ग्रेजुअली आपकी इर्द चलने वाली हर बिजली से चलने वाली चीज को IPv6 एड्रेस चाहिए होगा। When I say this, what I mean is स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट बिल्डिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर every device is going to be, has to be IP enabled। और जब हम IP enabled devices की बात करते हैं तो विजन देखें या फ्यूचर को अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें या उस पर नजर डालें तो बड़ा क्लियर आपको नजर आएगा इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट और वर्ल्ड विच वी आर गोइंग टू लिव इन। अगर आप IPv6 कॉन्सेप्ट को कंबाइन करें RFID के कॉन्सेप्ट से, RFID के साथ तो बेर हैं सब लोग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तो RFID का जो कॉन्सेप्ट है वो इवन नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इवन एनी हाउस होल्ड आइटम जो है जो कि बिजली से नहीं भी चलता उसको भी आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं जब आप RFID टैग्स के साथ चीजों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। और इसकी हमें इनके जो सबसे कॉमन एग्जांपल नजर आती है, मैं कल ही लाहौर से आया हूँ, तो मोटरवे के ऊपर जो ई टोल लेन या ई टोल का जो सिस्टम है इट इज ऑल बेस्ड ऑन RFID टैग्स। अपनी गाड़ी पे RFID टैग लगाते हैं, उसको टॉप अप करवाते हैं, पैसे डालते हैं। व्हेन यू ड्राइव थ्रू मोटरवे टोल प्लाजा तो जो ई पास वाली लेन है उसके अंदर RFID रीडर लगा होगा, वो आपके टैग को रीड करेगा, बैलेंस चेक करेगा, जितना बैलेंस डिडक्ट करना है डिडक्ट करके बाकी बता देगा इतना बैलेंस हमारे अंदर है। तो दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ RFID। अब इसको अगर आप कंबाइन करें IPv6 के साथ तो इमेजिन करें सिचुएशन क्या होगी। जस्ट एन एग्जांपल, स्मार्ट होम्स के अंदर आपने बाजार से सेब ला के रखे हैं, फ्रिज के अंदर दर्जन या 10 सेब ला के रखे हैं, एवरी एप्पल और एवरी सेब जो आपने रखा हुआ उसके ऊपर RFID टैग लगा हुआ है विच इज आइडेंटिफाइंग कि ये एक सेब है और सेब के बगैर कुछ जिसम है तो वो बताएगा। इंडिविजुअल सेब को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फ्रिज को आपने प्रोग्राम किया हुआ है, तो मोमेंट आपके फ्रिज के अंदर सेबों की तादाद 4 या 3 या 2 वटेवर जो भी आपने उसको इंसर्ट किया हुआ से कम होती है तो फ्रिज RFID रीडर जो फ्रिज में लगा हुआ उससे मदद से उसे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर इस वक्त सेबों की तादाद जो है वो 3 रह गई है। ऑटोमेटिकली फ्रिज ऑनलाइन जाएगा और आपका जो नियरेस्ट सुपर स्टोर है, मेट्रो, मैक्रो और वटेवर जो भी है उसके ऊपर जाके 10 सेबों का मजीद ऑर्डर कर देगा और अगर डबल रोटी अंडे या कुछ और भी चाहिए है तो वो भी ऑर्डर कर देगा और थोड़ी देर बाद डिलीवरी वैन आके आपके घर के अंदर डिलीवरी देगी ना कि 10 सेब आपके फ्रिज में ऑर्डर किए थे। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। और ये सिर्फ फ्रिज तक लिमिटेड नहीं होगा, ये चीज आपके माइक्रोवेव ओवन, ये चीज आपके वॉशिंग मशीन, आपके टेलीविजन, एयर कंडीशनर, पंखे, बत्तियां, हर चीज के साथ एप्लीकेबल होगा। और जब इन तमाम डिवाइसेस को आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, इन्होंने इंटरनेट को एक्सेस करना है या आपने इनको इंटरनेट से एक्सेस करना है, तो इन सब की आइडेंटिफिकेशन इंटरनेट पे होनी चाहिए, जिसके लिए वंस अगेन आपको बेतहाशा IP एड्रेसेस चाहिए होंगे। वो जो IP एड्रेसेस इतने ज्यादा आपको मिलेंगे वो तभी पॉसिबल है कि आप IPv6 यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको रियल IP चाहिए होंगे। और फिर ये होगा कि आप दुनिया में कहीं पे बैठे हुए आप अपने घर के अंदर अपनी जो पोर्च की लाइट है वो भी आप रात को जला सकते हैं और सुबह को आप ऑफ कर सकते हैं और तो आपका घर लॉक होगा। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, फ्यूचर नहीं है। जो स्मार्ट होम्स हैं वो दुनिया में बन रहे हैं, जो पैसे वाले हैं वो बना रहे हैं, ऑलरेडी घरों में लगा भी रहे हैं सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी जैसे कॉर्पोरेट जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड रूम्स हैं उनके अंदर ये चीजें अभी आई हैं, घरों के अंदर कॉमनली आपके मेरे जैसे लोगों के घरों में अभी नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान में भी आ गई हैं। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होती जाएगी ये चीजें और ज्यादा कॉमन घरों में भी आना शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्ली 5-10 साल के अंदर बहुत कॉमन हमें नजर आए। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, तो इसका मतलब ये है कि IPv6 इज इनएविटेबल, ये होना ही होना है जल्द या देर। तो लेट्स ऑल गेट रेडी ताकि जब ये रेवोल्यूशन आए तो हम वेल प्लेस्ड हो, वी शुड नॉट बी कॉट बाय सरप्राइज। तो आज हम IPv6 को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और अब के बाद की जो डिस्कशन है वो सॉर्ट ऑफ
more technical than business या more technical than application oriented होगी. तो IPv6 के बारे में अगर हम बात करें तो IPv6 का जो स्ट्रक्चर है वो IPv4 से ऑब्वियसली डिफरेंट है. और जब डिसाइड किया गया कि नया प्रोटोकॉल डेवलप करना है तो नए प्रोटोकॉल को डेवलप करने की प्राइम मोटिवेशन तो एड्रेस थ्रू या एड्रेस स्पेस की शॉर्टेज को दूर करना था. लेकिन ये सोचा गया कि जब इस तमाम एक्सेस करनी ही है और हमने एक्चुअली एक पूरा नया प्रोटोकॉल बनाना ही है तो फिर क्यों ना IPv4 के जो बाकी ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स ओवर द टाइम देखी गई थी उनको भी किसी बहाने रिमूव कर दिया जाए और एक ज्यादा एफिशिएंट प्रोटोकॉल डेवलप कर दिया जाए. वो जो एफिशिएंट प्रोटोकॉल डेवलप किया गया तो उसमें हमने देखा कि IPv4 की जो गैर जरूरी लवाजमात थे उनसे भी जांच छुड़वा दी गई और IPv4 का जो हेडर था उसको कॉम्पैक्ट करके, मैंने ऐसे कॉम्पैक्ट आई मीन सिंपलर नॉट शॉर्टर, शॉर्टर नहीं कह रहा मैं, सिंप्लीफाई करके IPv6 का हेडर डेवलप किया गया. तो लेट्स टेक अ लुक एट IPv6 एंड v4 हेडर्स इन कंपैरिजन. अगर आप इन हेडर्स को देखें तो ऊपर आपको IPv4 का हेडर नजर आता है और नीचे आपको IPv6 का हेडर नजर आ रहा है. IPv4 के हेडर में अगर आप देखें तो आपको 12 फील्ड्स नजर आ रही हैं. इन कंपैरिजन अगर आप IPv6 के हेडर को देखें तो आपको सिर्फ 8 फील्ड्स नजर आती हैं. तो 12 फील्ड्स वर्सेस 8 फील्ड्स जो है इसका मतलब है कि हेडर सिंप्लीफाई हो गया, इट्स अ सिंपलर हेडर नाउ. और सिंपलर हेडर को प्रोसेस करना किसी भी राउटिंग डिवाइस के लिए, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ज्यादा फील्ड्स वाले हेडर को प्रोसेस करना, क्योंकि ज्यादा फील्ड्स में हर फील्ड को अलग अलग प्रोसेस करना पड़ता है तो टाइम ज्यादा लगता है. ऑल्दो IPv6 का हेडर साइज में बड़ा है बट सिंस बिकॉज इट्स सिंपलर इसको प्रोसेस करना डिवाइसेस के लिए निस्बतन आसान है. सेकेंडली IPv6 का जो हेडर है इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर 64 बिट कंप्यूटिंग, यानी एक वक्त में डिवाइसेस जो आ रहे हैं वो 64 बिट्स को कंप्यूट कर सकते हैं. तो लिहाजा IPv6 के जो हेडर का स्ट्रक्चर बनाया गया है वो 64 बिट्स की कंप्यूटिंग को मद्देनजर रख के बनाया गया है कि 64 बिट्स में कहीं ब्रेक ना आ रही हो. इकट्ठी 64 बिट्स उठाई जाए तो उसमें कंप्लीट फील्ड्स का स्ट्रक्चर समा रहा हो, तो फील्ड ब्रेक ना हो रही हो. तो यहाँ पे 64 बिट्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप देखें तो ऊपर आपको 6 फील्ड्स नजर आ रही हैं और नीचे आपको सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस की फील्ड्स नजर आ रही हैं. ज्यादा छोटा तो नहीं है, ज्यादा छोटा तो नहीं है, साइज छोटा मैं भी बोला ना. अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले इसमें वर्जन की फील्ड है, ये IPv4 में भी फील्ड मौजूद थी और v6 में मौजूद है. IPv4 के वर्जन की फील्ड में 4 लिखा होता था, IPv6 के वर्जन की फील्ड में 6 लिखा हुआ, जस्ट टू आइडेंटिफाई के कौन सा वर्जन चल रहा है. उसके बाद नेक्स्ट आपको ट्रैफिक क्लास की फील्ड नजर आती है. ट्रैफिक क्लास की फील्ड एग्जैक्टली वही फील्ड है जो IPv4 के हेडर के अंदर टाइप ऑफ सर्विस की फील्ड थी, जो कि दोनों केसेस के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है. IPv4 का जो हेडर था उसके अंदर ओरिजिनली टाइप ऑफ सर्विस की फील्ड जो थी वो IP प्रेसिडेंस की 3 बिट्स के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करती थी, लेकिन बाद में उसको कन्वर्ट करके या मॉडिफाई करके DSCP बेस्ड कर दिया गया, which means डिफरेंशिएटेड सर्विसेज पोर्ट पॉइंट बेस्ड कर दिया गया. IPv6 जो है उसके अंदर शुरू से ही जो ट्रैफिक क्लास की फील्ड है वो DSCP बेस्ड ही है, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज पोर्ट पॉइंट बेस्ड है, जिसके अंदर मेनली 6 बिट्स आपकी इस्तेमाल हो रही होती है. तो वो स्टार्ट विद DSCP बेस्ड है. उसके बाद नेक्स्ट आपको फ्लो लेबल नजर आता है. फ्लो लेबल अभी एक्सटेंसिवली यूज नहीं हो रहा, इट वाज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट और ऑन द सेम मॉडल ऑन विच ATM क्वालिटी ऑफ सर्विस वाज वर्किंग. लेकिन ये क्योंकि ATM सॉर्ट ऑफ डायल डाउन कर गया है, ग्रेजुअली कर रहा है, इसलिए फ्लो लेबल की बहुत ज्यादा यूजेज नहीं है. नेक्स्ट आपको पेलोड लेंथ नजर आती है. पेलोड लेंथ जो है दिस शोज के हेडर के अलावा जो डेटा इनकैप्सुलेट हो रहा है, जो पेलोड हेडर कैरी कर रहा है, उस पेलोड की टोटल लेंथ क्या है. इसके कंपैरिजन में अगर आप IPv4 हेडर देखें तो IPv4 हेडर के अंदर हेडर लेंथ की अलग फील्ड होती थी और टोटल लेंथ की अलग फील्ड होती थी, क्योंकि IPv4 का हेडर जो था वो वेरिएबल लेंथ हेडर हुआ करता था, 20 to 24 बाइट्स का हो सकता था, जबकि IPv6 का हेडर जो है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड हेडर. तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपको फील्ड नजर आती है
पेलोड लेंथ की फील्ड है, हेडर लेंथ की फील्ड मौजूद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपको नेक्स्ट हेडर की फील्ड नजर आती है। नेक्स्ट हेडर की फील्ड probably is one of the most important fields of IPv6 header, जिसके साथ आपको बताया जाता है या बिल्ट इन सर्विसेज दी जाती है, फॉर एग्जांपल IPsec की सर्विसेज, IP मोबिलिटी की सर्विसेज या स्ट्रिक्ट सोर्स बेस्ड राउटिंग की सर्विसेज, जो कि नॉर्मली IPv4 हेडर के अंदर ऑप्शंस की फील्ड में आती थी। ऑप्शंस की फील्ड जहाँ पे एंड पे आती थी डेस्टिनेशन एड्रेस के बाद IPv4 के अंदर, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो सर्विसेज मिलती हैं वो नेक्स्ट हेडर की फील्ड के थ्रू एक और हेडर, एडिशनल हेडर अटैच होता है, उसके अंदर आपको मिल रही होती है। और फाइनली फिर आपका ऑफ लिमिट की फील्ड है। ऑफ लिमिट की फील्ड जो है ये IPv4 में भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन IPv4 को इसके अंदर इसको हम कौन सी फील्ड कहते थे? टाइम टू लिव की फील्ड या TTL की फील्ड कहते थे। यहाँ पे उसी फील्ड को हम ऑफ लिमिट की फील्ड कह देते हैं। इनफैक्ट दिस इज अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाटएवर दिस फील्ड इज डूइंग। IPv4 के अंदर उसको कहते तो टाइम टू लिव की फील्ड थी, लेकिन उसका ताल्लुक ऑफ काउंट से होता था, उसका ताल्लुक एक्चुअली सेकंड बेस्ड या मिनट्स बेस्ड टाइम से नहीं होता था। तो यहाँ पे उसको ज्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया गया ऑफ लिमिट के साथ। नेक्स्ट इसके अंदर जो फील्ड्स जो आती हैं वो ऑब्वियसली वो फील्ड्स हैं जिसकी वजह से पूरा प्रोटोकॉल डेवलप किया गया था, विच मीन्स योर सोर्स IPv6 एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IPv6 एड्रेस। और अगर आप देखें तो 64 बिट्स की एक लाइन है, 64 बिट्स की दूसरी लाइन है, जो टोटल 128 बिट्स का एड्रेस आपका बन रहा है। ये आई एम श्योर आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है। तो 128 बिट्स का आपका सोर्स एड्रेस और 128 बिट्स का आपका डेस्टिनेशन एड्रेस। IPv4 एड्रेस यूज्ड टू बी 32 बिट्स, ये 128 बिट्स है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो IP एड्रेस की स्पेस है, IP एड्रेस की जो बिट की लेंथ है, इट हैज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। बट एज वी अंडरस्टैंड IP एड्रेस स्पेस 4 टाइम्स इंक्रीज नहीं हुई, वो 34 बिट्स पे 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये 2⁻96 टाइम्स आपकी जो एड्रेस स्पेस है वो इंक्रीज हुई है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग कहा जा सकता है कि इस वक्त हम जो बात कर रहे थे, दोनों कॉन्सेप्ट को अगर लिंक करें, दिस इज द नंबर ऑफ IP एड्रेसेस दैट वी हैव नाउ, और जो हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे या इनकी रिक्वायरमेंट या इनकी नीड की बात कर रहे थे कि हर चीज को IP एड्रेस चाहिए होगा ऑलमोस्ट, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो दुनिया का टोटल जो सरफेस एरिया है जिसके अंदर आपके समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान, सहरा, जंगल सब कुछ आता है, उसको अगर आप एरिया को कंपेयर करें तो आपके 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली आपके पास 7000 IPv6 एड्रेसेस अवेलेबल है इन 1 स्क्वायर मीटर। तो उसका मतलब है कि कभी हमें शॉर्टेज नहीं होगी IPv6 एड्रेसेस की, प्रॉब्लम नहीं आएगी कि IPv6 एड्रेसेस भी खत्म हो रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। और अगर कभी मसला आ भी गया, प्रॉब्लम आ भी गई, तो आपको और मेरा हेडेक नहीं है, जो बैठे हैं इसको संभालने के लिए खुद ही कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। तो लेकिन फोर्सिबल फ्यूचर के लिए IPv6 जो है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एड्रेसेस अब अवेलेबल हैं। सो दिस इज द अबंडेंस ऑफ IPv6 एड्रेसिंग। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाए तो उसको जाया करने को भी दिल चाहता है। और आपने नोट किया होगा कि IPv4 के अंदर हमने शुरू में जाया किया और बाद में हम पछताए, लेकिन IPv6 के अंदर डिलिबरेटली जाया किया जाता है टू बाय समथिंग। IPv4 का तो स्ट्रक्चर शुरू में था कि मैं समझ ही नहीं आई, अब तो मैं पता था कि जाया करने का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे IPv6 एड्रेसिंग के यूजर्स को जो आप पढ़ेंगे देखेंगे तो IPv6 एड्रेसेस को खुले दिल से जाया किया जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई चीज बेनिफिट भी लिया जाता है। तो बेनिफिट आइडिया है कि क्या हो सकता है, ये क्या बेनिफिट है जो उनको यूज किया जाता है? जी, राउटिंग ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, टेस्टिंग, जी मे बी टेस्टिंग। टेस्टिंग। अच्छा, वैसे जिंदगी में आप जो पैसा जाया करते हैं, कोई भी रिसोर्स आप जाया करते हैं, तो जनरली गाड़ी बड़ी खरीदते हैं, कपड़े अच्छे खरीदते हैं, घर बड़ा खरीदते हैं, तो जनरली आप जहाज में ट्रेवल करते हैं तो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, तो जनरली आप क्या चीज बाय करते हैं? लग्जरी बाय कर रहे हैं। जनरली आप लोग कन्वीनियंस बाय करते हैं जब भी आप फजूल खर्ची करते हैं। तो एक्चुअली जब आप IPv6 का यूसेज देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि IPv6 के अंदर IP एड्रेसेस बेतहाशा जाया किए जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो चीज बाय की जाती है वो सिंप्लिसिटी है। IPv4 के अंदर सबनेटिंग और वेरिएबल एंड सबनेटिंग और फिर सबनेटिंग को मैनेज करना विद राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड ऑल दैट स्टफ, इट गॉट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टुवर्ड्स द एंड। इसलिए IPv6 के अंदर उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी एड्रेस स्पेस है तो हम उसको सिंप्लीफाइड रखते हैं।
उस एड्रेस स्पेस का यूजेज जो होगा उसको हम सिंपल रखेंगे, बेशक उस यूजेज के अंदर जो सिंपलिसिटी को बाय करने के लिए हमें IPv6 एड्रेसेस बेदरेव इस्तेमाल और ज़ाया भी करने पड़े। तो किस तरह से ज़ाया होते हैं वो मैं आपको जब एड्रेस स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू दी IPv6 एड्रेस स्ट्रक्चर के जो नीचे दोनों फील्ड आपको दी हुई है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस की, इनके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, कोई आइडिया है इसके अंदर क्या हो रहा है, आइडिया है? हाँ नहीं, इन एड्रेसेस का स्ट्रक्चर कैसा है? ये जो नीचे दोनों एड्रेसेस V6 एड्रेसेस दिए हुए हैं, आई एम जंपिंग द गन, मैंने भी पढ़ाया नहीं, बताया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। 128 बिट्स एड्रेसेस हैं, ये तो कुछ बता दिया। अच्छा, तो थोड़ा सा गौर से सुनो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। तो IPv6 एड्रेसेस जो आपके हैं, IPv6 एड्रेसेस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये 128 बिट्स के एड्रेसेस हैं, 128 बिट्स एड्रेसेस, और इन 128 बिट्स को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई बहुत नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ऑलरेडी आप सब लोगों को पता है, लेकिन क्योंकि हमने पेज बिल्डअप करनी है तो वी गो थ्रू इट क्विकली। हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। IPv4 एड्रेसेस 32 बिट्स के होते थे, लेकिन उनको डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता था ताकि ज्यादा कॉम्पैक्ट हो सके। उसके बाद हेक्साडेसिमल में भी अगर आप रिप्रेजेंट करें तो ईच हेक्साडेसिमल डिजिट वुड एक्चुअली रिप्रेजेंट 4 बिट्स। तो इसका मतलब है कि आपको 32 हेक्साडेसिमल डिजिट्स चाहिए इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ 128 बिट्स IPv6 एड्रेस। तो जो 32 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं वो भी कोई छोटे नहीं हैं। अगर आप देखें तो दिस इज योर सैंपल IPv6 एड्रेस। लेकिन फॉर्चुनेटली किसी भी IPv6 एड्रेस को सिंप्लीफाई करने के भी एक दो रूल्स बना दिए गए हैं, जिसके अंदर सिंपली ये कहा जाता है कि बाय द वे इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 32 हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो हैं उनको 4-4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और हर ग्रुप को दूसरे से सेपरेट किया गया है कोलन की मदद से। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। जैसे IPv4 एड्रेसेस में डॉट से सेपरेट करते थे, यहाँ पे आप कोलन से सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली IPv6 एड्रेसेस के अंदर बहुत ज्यादा जीरोस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस एड्रेस में भी नजर आ रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स व्हिच कंटेन लॉट ऑफ जीरोस। तो सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आपका एक ग्रुप ऑफ ऑल जीरोस है, फॉर एग्जांपल दिस और दिस, तो इसको आप सिंपली एक सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर किसी ग्रुप के अंदर कुछ लीडिंग जीरोस हैं, लेफ्ट से स्टार्ट लेके कुछ लीडिंग जीरोस हैं, ऑल जीरोस नहीं है, लीडिंग जीरोस है, तो उनको आप सिंपली रिमूव कर सकते हैं। तो उसकी मदद से हमने जो सेम एड्रेस को जो शेप किया उसमें हमने क्या किया है, ऑल जीरोस के ग्रुप्स को सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट किया, रिप्लेस किया, और किसी भी ग्रुप के अंदर अगर कुछ लीडिंग जीरोस थे तो उनको हमने रिमूव करके सिर्फ जो एक्चुअल वैल्यूज है, नंबर्स थे, नॉन जीरो नंबर्स, उनको हमने वहां पे रहने दिया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बन गया है, छोटा स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अभी भी ये बड़ा है, इसके लिए उन्होंने एक और ऑप्शन दी कि इफ यू हैव ग्रुप्स ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस या कंसेक्यूटिव ग्रुप्स ऑफ जीरोस, तो आप उनमें से किसी एक सेगमेंट या एक ग्रुप को डबल कोलन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस एड्रेस के अंदर कंसेक्यूटिव जीरोस के 2 ग्रुप्स हैं, एक ये 2 जीरोस वाला ग्रुप और एक ये 3 जीरोस वाला ग्रुप है। तो इनमें से किसी एक ग्रुप को आप डबल कोलन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली उसको शॉर्टेस्ट बनाने के लिए यू वुड ऑलवेज प्रेफर के ज्यादा कंसेक्यूटिव जीरोस वाला जो सीक्वेंस है उसको आप रिप्लेस करें। तो हमने यहाँ पे इन 3 जीरोस वाले ग्रुप्स को रिप्लेस कर दिया एक डबल कोलन के साथ। So this address or this address or this address, all 3 addresses are the same and they are actually representing the same number or the same IPv6 address. लेकिन नॉर्मली जब आप लिखेंगे इसको तो नीचे वाला एड्रेस लिखेंगे, लेकिन जब भी कोई IPv6 डिवाइस इसको पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इसको एक्सपैंड करके ऊपर वाला एड्रेस और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके पढ़ेगा। अब इसके अंदर लॉजिक बड़ी क्लियर है कि आप सिर्फ एक दफा क्यों रिप्लेस कर सकते हैं सीक्वेंस को, दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि कंफ्यूजन होगा कि कौन से डबल कोलन की जगह 2 जीरोस इंसर्ट करने हैं और कौन से डबल कोलन की जगह आपने 3 जीरोस इंसर्ट करने हैं। सो यू कैन ओनली डू दिस एक्सरसाइज वंस इन योर एंटायर IPv6 एड्रेस। क्लियर जी? तो जनरली आपको IPv6 एड्रेसेस इस फॉर्मेट में लिखे हुए नजर आएंगे। अब इस फॉर्मेट के अंदर हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ कि IPv6 एड्रेसेस को हम जाया बड़ा बेदरेल करते हैं। नॉर्मली IPv4 के अंदर जब आप सबनेटिंग करते थे या IPv4 का वैसे भी स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास नेटवर्क पोर्शन होता था और आपके पास होस्ट पोर्शन हम कहते थे।
اور نیٹورک پورشن کتنا بڑا ہے اور ہوسٹ پورشن کتنا بڑا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کلاس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کلاس کے اندر پھر آپ فردر سبنیٹنگ یا ویریبل لینتھ سبنیٹنگ در سبنیٹنگ کرتے تھے جسٹ ٹو میک شیور کہ جس نیٹورک کو IPv4 ایڈریس آپ دے رہے ہیں کسی بھی نیٹورک کو اس کے اندر ویسٹیج آف IP ایڈریسز مینیمائز ہو سکے. جس سائز کا نیٹورک ہے اس کے اپروپریٹ سائز کا IP سبنیٹ بھی اس کو اسائن کیا جائے. لیکن IPv6 کے اندر اس جھنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی یا اس جھنجٹ میں نہیں پڑھا جاتا. IPv6 میں کہا جاتا ہے کہ جنرلی آپ 64 بٹس کی نیٹورک ID یا پریفکس لینتھ رکھیں اور 64 بٹس کی آپ اس کو ہوسٹ پورشن کہتے ہیں یا انٹرفیس ID رکھیں. IPv6 میں اس کو ہم انٹرفیس ID کہہ دیتے ہیں. سو جنرلی یو ول کم اکراس IPv6 ایڈریسز جن میں 64 بٹس پریفکس لینتھ اور 64 بٹس انٹرفیس ID آپ کے ہوتے ہیں. اس سے آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. لیکن جسٹ امیجن کہ ایک نیٹورک ہے اس کے اندر آپ کے پاس 64 بٹس انٹرفیس ID میں یا ہوسٹ پورشن میں اویلیبل ہے تو کتنے ہوسٹ ہو سکتے ہیں اس ایک نیٹورک میں 2⁻64 ہوسٹ. پریکٹیکلی کسی ایک نیٹورک میں 2⁻64 ہوسٹ ہے اس کے قریب قریب بھی کبھی بھی نہیں ہوں گے. So this is what I meant by when I said that we waste a lot of IPv6 addresses. So we are wasting a lot of IPv6 addresses, but what we are getting in return is simplicity. Confusion نہیں ہوگا, دقت پیش نہیں آئے گی, مشکل نہیں ہوگی, زندگی آسان رہے گی. کیونکہ IPv6 ایڈریسنگ کا اسٹرکچر تو ذات خود کافی کمپلیکیٹڈ ہے, سائز 4 گنا بڑا ہے ایڈریس کا, تو اس کو مزید کمپلیکیٹ کرنے سے بچانے کے لیے ہم نے کہا کہ 64 بٹس نیٹورک پورشن میں اور 64 بٹس آپ انٹرفیس ID کے طور پہ آپ رکھیں. تو جنرلی آپ کو 64 کا بریک اپ نظر آئے گا. اب جو آپ کے اس اسٹرکچر کے مطابق ڈفرنٹ جو ایڈریس ٹائپس بنتی ہیں اس کے اندر کلاسز کا کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے IPv4 میں ہی دیکھ لیا تھا کہ کلاسز نے ہمیں بہت دلیل کروایا تھا. تو IPv6 کے اندر شروع سے ہی کوئی کلاس اسٹرکچر رکھا ہی نہیں گیا. دیر آر نو کلاسز. However, there are different types of addresses in IPv6 as well. So let's take a look at the different types of IPv6 addresses. کہ کون کون سے IPv6 addresses exist کرتے ہیں. اگر آپ IPv6 ایڈریسز کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ایڈریس آتا ہے اس کو ہم ایگریگیٹبل گلوبل ایڈریسز یا سمپلی گلوبل یونیکاسٹ ایڈریسز بھی کہہ دیتے ہیں. ایگریگیٹبل گلوبل ایڈریسز یا گلوبل یونیکاسٹ ایڈریسز یہ وہ ایڈریسز ہیں جو ایگزیکٹلی اسی طرح سے کام کرتے ہیں جس طرح سے آپ کے IPv4 کے کلاس A, B اور C کے ایڈریسز کام کرتے تھے, جن کو یوز کرتے ہوئے آپ انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اور یہ گلوبلی راؤٹیبل ہوتے ہیں, ایگریگیٹبل بھی ہوتے ہیں, ان کو آپ سمرائز بھی کر سکتے ہیں اور راؤٹیبل بھی ہوتے ہیں. ان ایڈریسز کی پہچان یہ ہے, ان ایڈریسز کی نشانی یہ ہے ایڈریسز کی پہچان یہ ہے کہ یہ اسٹارٹ ہمیشہ 001 سے ہوں گے. اگر آپ بائنری فارم میں دیکھیں 128 بٹس کو تو کسی بھی ایڈریس کی پہلی 3 بٹس اگر 001 ہے اس سے دونوں کو نظر آ رہے ہیں. اگر پہلی 3 بٹس 001 ہے تو دس ایڈریس وڈ بی کالڈ این ایگریگیٹبل گلوبل ایڈریس. اور بہت سے ایڈریس اسپیس ابھی ریزرو رکھی گئی ہے جس کو ایز گلوبل ایڈریسز استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن فی الحال اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا پہلا جو ہیکسا ڈیسیمل ڈیجٹ ہے, تو پہلی 3 بائنری میں بٹس ہوگی, جو پہلا آپ کا ہیکسا ڈیسیمل ڈیجٹ ہے اس میں کتنی بٹس ہوتی ہیں 4 کسی بھی ہیکسا ڈیسیمل میں. تو اس کا مطلب ہے the fourth bit is variable, it can change. تو اگر یہ چینج ہوگی تو یا 0 ہوگی یا 1 ہوگی, تو آپ کا پہلا ہیکسا ڈیسیمل ڈیجٹ یا 0010 ہوگا یا 0011 ہوگا. اگر 0010 ہوگا تو ہیکسا ڈیسیمل میں یہ 2 بنے گا اور اس کیس میں یہ 3 بنے گا. سو آپ کا کوئی بھی IPv6 ایڈریس اگر 2 یا 3 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پہلا ہیکساڈیسیمل ڈیجٹ, ویری فرسٹ ڈیجٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا گلوبل یونیکاسٹ ایڈریس یا ایگریگیٹبل گلوبل ایڈریس ہے. اور یہ جو میں نے ایگزامپل میں آپ کو ایڈریس دیا تھا, دس انڈیڈ واز اے گلوبل یونیکاسٹ ایڈریس. اور بائی دا وے آپ کے پاس گلوبل یونیکاسٹ ایڈریسز کی جو رینج ہے ٹوٹل IPv6 ایڈریسز کی کتنی فریکشن اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے 1/8
पहली 3 बिट्स है ना, तो 2 raised power 3 is 8, तो 1/8 जो एड्रेस स्पेस है वो आपकी सारी की सारी इस कैटेगरी में फॉल कर रही है। 2 raised power 125 एड्रेसेस इस कैटेगरी के अंदर फॉल करें। सो दिस अ ह्यूज स्पेस। तो परेशान नहीं होना कि सिर्फ 2 और 3 से स्टार्ट होने वाले एड्रेसेस की वजह से ह्यूज स्पेस खत्म नहीं होगी है। तो these are called aggregatable global or global unicast addresses which are used for communicating over the internet। उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस है which is very interesting and new address, इसके बारे में IPv4 अगर आपने सिर्फ पढ़ा हो तो इस एड्रेस के इक्विवेलेंट आपको पता नहीं होगा, इसका कोई इक्विवेलेंट IPv4 में नहीं है। लिंक लोकल एड्रेसेस आर स्पेशल एड्रेसेस जो कि IPv6 की इंटरनल बहुत सी सर्विसेज और राउटिंग प्रोटोकॉल्स को इनेबल करने में या उनके ऑपरेशन में यूज होते हैं। IPv6 के अपने अंदर भी नेटवर्क नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है, NDP वगैरह, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन वगैरह होता है, या आपका राउटर सोलिसिटेशन मैसेजेस वगैरह, वो सारे के सारे जो हैं वो एक्चुअली इन्हीं एड्रेसेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एड्रेस जो है ये इनहेरेंटली IPv6 की बैकबोन है, लिंक लोकल एड्रेस। लेकिन जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, इनका स्कोप जो है इट डज नॉट गो बियॉन्ड अ सिंगल लिंक। एक लिंक से आगे ये एड्रेसेस नहीं मूव कर सकते। अगर आपने अपने डायरेक्टली कनेक्टेड या नेबरिंग नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, और वो भी जनरल कम्युनिकेशन नहीं, जो IPv6 की इंटरनल सर्विसेज की कम्युनिकेशन होनी है, उसके लिए आपका लिंक लोकल एड्रेस इस्तेमाल होगा। लिंक लोकल एड्रेसेस की निशानी क्या है? लिंक लोकल एड्रेसेस जो है उनको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, FE80:10। स्टेटमेंट का मतलब यह है कि किसी भी एड्रेस की अगर पहली 10 बिट्स इस गिवन एड्रेस या नंबर की पहली 10 बिट से मैच कर रही हैं, दैट एड्रेस विल बी कॉल्ड अ लिंक लोकल एड्रेस। अगर आप इस एड्रेस को देखें, बाय द वे किस किस को ये ऑलरेडी इनसाइड आउट पता है, ताकि मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम सब कहाँ करें। किस किस को ये इनसाइड आउट पता है ये कॉन्सेप्ट? इसको थोड़ा सा सुना हुआ है लिंक लोकल एड्रेसेस का, लेकिन क्लियरली आइडिया नहीं है। और किसने पहली दफा जिंदगी में लिंक लोकल एड्रेस की टर्म सुनी है? ईमानदारी से। इट मींस वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। हम कोई वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी को इन एड्रेसेस का नहीं पता। लिंक लोकल एड्रेस जो है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली 10 बिट्स जो है वो इस एड्रेस से किसी भी एड्रेस की मैच करेंगी, दैट एड्रेस वुड बी अ लिंक लोकल एड्रेस। इसकी अगर पहली 10 बिट्स को देखें तो क्या होंगी? पहली 10 बिट्स, मैंने चारों हेक्साडेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में लिखा और उन 16 डिजिट्स में से जो पहले 10 डिजिट्स बन रहे हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ब्रैकेट कर दिया।